Good morning, students. Today we'll start our chapter 3rd, Consumer's Equilibrium, the Utility Analysis. Okay. ये चैप्टर मैंने पहले स्किप कर दिया था, सीक्वेंस में नहीं कराया था, बिकॉज आई हैव प्लान दैट आई स्टार्ट इट इन द क्लासरूम. बट अब जैसे कि ये पैंडमिक की वजह से लॉकडाउन इंक्रीज ही हो एक्सटेंड ही होता जा रहा है, सो वी हैव टू कंटिन्यू इन द वीडियो लेक्चर. ओके. So today we'll discuss about the utility analysis. Okay. So first of all, the term we will discuss about the term utility. What utility is exactly? Okay. So utility have two definitions, very easy and common definitions we can use. Okay. Utility is the want satisfying power of a commodity. Okay. Friends, we know that we consume something for our survival. Okay, to satisfy our hunger we need to consume something. Okay, and whenever we consume, some sort of satisfaction we get by consuming that article or commodity or whatever food product it is. Okay, so some level of satisfaction we will get by consuming that food product. Okay, so that satisfaction or the level of satisfaction which we have, the level of satisfaction which we have derived or we have received from the consumption of a commodity, that satisfaction is called utility. Okay, now in economics terms, technically we will use utility word, okay, in place of satisfaction. Okay, so what is utility? The satisfaction which is received by consuming a commodity. Okay, क्योंकि commodity जब हमने consume की, okay, now we are not just talking about the like eating eating products or eatables only. Okay, we are not talking about only eatables. Okay, any product we are consuming it, whether for example it is a shirt or a t-shirt, a shoe or a pair of shoes, you can say. Clear? Anything, whatever we consume for satisfying our different types of needs. Okay, as we know it, a product or a good provides various kind of or various utilities. Okay, कई तरह की utilities हमें एक product देता है. For example, physical utility भी हमें देता है एक product, psychological utility भी देता है, social utility भी देता है. Okay, like what is physical utility? एक शर्ट पहना, बॉडी को कवर किया, that is called the physical utility which is provided by the शर्ट. ओके, शर्ट ने क्या काम किया? बॉडी को कवर करने का काम किया. ठीक है, हमारी बॉडी कवर हो गई, हमें सेटिस्फेक्शन मिल गई. ओके, अब वो शर्ट मुझे पे बहुत अच्छी लगी, मतलब वो शर्ट पहन के मुझे बहुत अच्छा लाइक मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूँ, लाइक दैट यू कैन से. मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ये शर्ट मेरे पर बहुत जच रही है, दैट मीन्स इट सूट्स मी. ओके, तो मुझे सूट कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कलर या फिर फैब्रिक जो भी है. ठीक है, पैटर्न जो भी है उस शर्ट के, दैट इज साइकोलॉजिकल यूटिलिटी. ओके, मैं सोच रहा हूँ कि ये शर्ट या टी शर्ट में मैं बहुत अच्छा दिखूंगा या दिखता हूँ, दैट इज साइकोलॉजिकल यूटिलिटी. मैंने पहना तो उसने बॉडी को कवर किया. ओके, लाइक यू कैन से रेनकोट पहना तो बारिश से बचाया, दैट इज फिजिकल यूटिलिटी. ओके, साइकोलॉजिकल कि मैं वो पहन के मुझे लगा कि मैं इस शर्ट में या टी शर्ट में बहुत अच्छा दिखता हूँ. ठीक है, दिख रहा हूँ, ये दैट इज साइकोलॉजिकल यूटिलिटी. सोशल यूटिलिटी, नाउ व्हाट इज सोशल यूटिलिटी? साइकोलॉजिकल, हमें अपने दिमाग से हमने सोचा, जब दूसरे हमारे बारे में सोचेंगे, दैट इज सोशल यूटिलिटी. ओके, साइकोलॉजिकल यूटिलिटी जब हम एक कंज्यूमर खुद सोच रहा है उसको कंज्यूम करते हुए कि हाँ मुझे इससे ये सेटिस्फेक्शन मिलेगी, दैट इज साइकोलॉजिकल यूटिलिटी. और उसके कंजम्पशन से जब दूसरे लोग, सोसाइटी आपके बारे में सोचे, दैट इज सोशल यूटिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, उस शर्ट को पहन के लाइक मेरी रेपुटेशन, इमेज अच्छी बनी सोसाइटी में, लाइक वो ब्रांडेड शर्ट थी, कलर अच्छा था, दूसरे लोगों को भी पसंद आया, उन्होंने मुझे प्रेज किया बहुत ज़्यादा, दैट इज़ द सोशल यूटिलिटी ऑब्वियसली. ओके, क्लियर? एक महंगी कार लेके बाहर निकलते तो लोगों के दिमाग में क्या आता है कि आप अमीर हैं. ठीक है, दैट इज़ द सोशल यूटिलिटी, जो कि आपको कार नहीं दी या दिलवाई, वो जो प्रेस्टीज थी. क्लियर? So a commodity, various types of utility or various kinds of utility means various kinds of satisfaction. What is utility? Utility is a satisfaction. Okay, so various kinds of satisfaction एक product एक consumer को provide करता है. Clear? So what is a utility? Utility is a set level of satisfaction which is derived by consumption. Consumption से ही derive होती है. Commodity रखी हुई है तब तक नहीं होगी. ठीक है, जब आप उसको यूज करते हैं तभी आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी. ओके, क्लोजेट में शर्ट रखी हुई है, टी शर्ट रखी हुई है, ठीक है ना, तो आपको साइकोलॉजिकल यूटिलिटी दे रही है वो, ना ही आपको फिजिकल यूटिलिटी दे रही है. और सोशल तो बिल्कुल नहीं देगी, जो बंद रखी है
तो बाहर पहन के ही नहीं निकले तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आपके पास एक चीज़ है. ओके, सो वेरियस टाइप्स ऑफ सेटिस्फेक्शन ए कमोडिटी प्रोवाइड्स टू ए कंज्यूमर, और वो कंजम्पशन पे मिलती है सेटिस्फेक्शन. ओके, सो सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन इज कॉल्ड यूटिलिटी. क्लियर? Okay, now we will measure the level of satisfaction. Okay, how much satisfaction we have derived or one has derived by consuming a commodity. Okay, so उस utility satisfaction level, okay, satisfaction level या utility को measure करेंगे कि कितना satisfaction, how much satisfaction one has derived by consuming a commodity. Okay, एक commodity को consume करने से कितना satisfaction हमें मिला. Okay, उसको measure करेंगे. Clear? Now, some economists were of the opinion that utility can be measured cardinally. Okay, utility cardinal numbers में. What are cardinal numbers? Cardinal numbers are the numbers which explains the quantity. Okay, cardinal numbers are the numbers which explain or tells the quantity in the form of 1, 2, 3, 4. Okay, so some of the economists were of the opinion that the utility or the satisfaction level can be measured in cardinal numbers. That means 1, 2, 3, 4. मुझे 4 यूटिल्स मिले, ठीक है, 4 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फेक्शन मिली, 3 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फेक्शन मिली. ओके, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 की फॉर्म में जो नंबर्स हैं वो कार्डिनल नंबर्स हैं जो क्वांटिटी को दिखाते हैं. Whereas in contrast, some other economists were also there who believed that utility or satisfaction cannot be measured in cardinal numbers. That means ये quantitatively measure नहीं की जा सकती है. ठीक है, utility can be measured or can be ranked as high or low. ये high or low level of satisfaction can be either high or can be low. हमें satisfaction ज़्यादा मिला या कम मिला. Okay, it can only be ranked as high or low. That means it can be measured in ordinal numbers. Okay, ordinal numbers होते हैं for example जो rank के लिए use किए जाते हैं, first, second, third, fourth. Okay, these are the numbers which are used for rank or position. जो रैंक और पोजीशन के लिए नंबर यूज़ किए जाते हैं वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ऐसे यूज़ किए जाते हैं. ओके, सो इन नंबर्स को हम ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं. ओके, तो कुछ इकोनॉमिस्ट थे जो मानते थे कि सेटिस्फेक्शन लेवल और यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स, कि 1, 2, 3, 4 इस फॉर्म में मेजर नहीं की जा सकती है. ठीक है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट. ओके, इट कैन बी रैंक्ड एज हाई और लो. ओके, हम ये नहीं कहेंगे कि इट कैन बी मेजर्ड एज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. ओके ओके, उन्होंने क्या ब्रीफ दिया, उन्होंने कहा यूटिलिटी कैन बी रैंक्ड एज हाई और लो. दैट मीन्स रैंक बेसिस पे. ओके, इसकी रैंक हम मेजर कर सकते हैं. यूटिलिटी कैन बी रैंक्ड एज हाई और लो. ओके, सो कैसे, कौन थे वो लोग जो मानते थे कि कार्डिनल और कौन थे वो कि जो ऑर्डिनली मेजर करते थे. सो एक बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट है प्रोफेसर डॉक्टर मार्शल. ओके, डॉक्टर मार्शल जो थे वो इस ओपिनियन को फॉलो करते थे कि यूटिलिटी जो है कार्डिनल नंबर्स में मेजर की जा सकती है. मार्शल मानते थे कि 1, 2, 3, 4 की फॉर्म में यूटिलिटी की यूनिट्स को मेजर कर सकते हैं, सेटिस्फेक्शन की यूनिट्स को मेजर कर सकते हैं. ऑन द अदर हैंड प्रोफेसर हिग्स, उनका ओपिनियन था कि इट कैन नॉट बी मेजर्ड कार्डिनली. इसको हम कार्डिनली मेजर नहीं कर सकते, इसको ऑर्डिनली ही मेजर किया जा सकता है. दैट मीन्स इसको रैंक दी जा सकती है हाई और लो. ओके, यहाँ पे हम दोनों तरीके से पढ़ेंगे, कार्डिनल मेजरमेंट भी पढ़ेंगे एंड ऑर्डिनल मेजरमेंट भी पढ़ेंगे. बट इन दिस चैप्टर वी विल बी डिस्कसिंग ओनली अबाउट द कार्डिनल कॉन्सेप्ट. ओके, so the cardinal approach of utility analysis. Okay, in this chapter we will be discussing about the cardinal approach of utility analysis. Okay, and cardinal is the quantitative numbers. Okay, हम quantitative numbers में इनको express कर रहे होंगे. Clear? Now the concept of total utility and marginal utility. Okay, total and marginal concept we have already discussed in various concepts. In various topics, the concept of total, marginal and average. Okay, here we will be discussing about total and marginal utility. Here, what is total utility? As we have discussed what utility is. Okay, utility से confuse नहीं होना है. utility क्या है? utility है satisfaction derived by consuming a commodity. एक commodity है, commodity की कुछ units. ओके, कमोडिटी भी हो सकती है, उसकी कुछ यूनिट्स भी हो सकती हैं. उसको कंज्यूम करने पे हमें कितना सेटिस्फेक्शन लेवल मिला, दैट सेटिस्फेक्शन इज कॉल्ड यूटिलिटी. ओके, सो
टोटल यूटिलिटी मीन्स अब हम एक कमोडिटी की बहुत सारी यूनिट्स भी कंज्यूम कर रहे हो सकते हैं, ओके। सो उन सभी, उस कमोडिटी की सभी यूनिट्स को या उन सभी यूनिट्स को कंज्यूम करके या कुछ टोटल यूनिट्स को कंज्यूम करके जो हमें यूटिलिटी मिला, उन यूटिलिटीज का सम टोटल यूटिलिटी है, ओके। सो व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? इज द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी, ओके, और सेटिस्फेक्शन, सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड बाय कंज्यूमिंग ऑल द यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी। एक कमोडिटी की सभी यूनिट्स को कंज्यूम करके हमें जितनी भी यूटिलिटी मिली उन सबका टोटल, सभी यूनिट्स को, लाइक फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करी तब कुछ यूटिलिटी मिली होगी, सेकंड यूनिट कंज्यूम करी तब कुछ अलग यूटिलिटी मिली होगी, थर्ड के साथ कुछ और, फोर्थ के साथ कुछ और, ओके। तो हमें कुछ यूटिलिटी मिली, ठीक है। अब जो यूटिलिटी है, ठीक है, इनको मेजर करने के लिए हम यूनिट्स यूज करते हैं, ओके। दैट यूनिट इज यूटिल, ओके। यूटिलिटी इज द सेटिस्फेक्शन, ओके। उस सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के लिए हम कुछ यूनिट्स यूज करते हैं एंड दैट यूनिट इज यूटिल, ओके। यूटिल इज, व्हाट इज यूटिल? यूटिल इज द यूनिट ऑफ यूटिलिटी जनरली, ठीक है। यूटिल जो है वो यूटिलिटी की यूनिट है, ठीक है। कितने यूटिल्स एक कमोडिटी ने हमें दिए, ओके। यूटिल इज द यूनिट ऑफ यूटिलिटी और यूनिट ऑफ सेटिस्फेक्शन लेवल, सेटिस्फेक्शन लेवल को मेजर करने की यूनिट है यूटिल, ओके। हम यूटिल्स में मेजर करेंगे यूटिलिटी, ओके। तो फॉर एग्जांपल एक कमोडिटी को कंज्यूम करने पे 4 यूटिल्स मिले, उसी कमोडिटी की दूसरी यूनिट को कंज्यूम करने पे 3 यूटिल्स मिले, उसी कमोडिटी की तीसरी यूनिट कंज्यूम करने पे 2 यूटिल्स मिले। तो उस कमोडिटी की टोटल हमने 3 यूनिट्स कंज्यूम की है, तो टोटल यूटिलिटी उस कमोडिटी की कितनी हो गई? 4 3 2। 4 यूटिल्स हमें फर्स्ट यूनिट से मिले, 3 यूटिल्स सेकेंड यूनिट ने दिए एंड 2 यूटिल्स थर्ड यूनिट ने दिए। तो पूरी टोटल कमोडिटी को, सॉरी टोटल यूटिलिटी कितनी होगी पूरी कमोडिटी से? 4 + 3 + 2, ओके। 9 यूटिल्स हमें मिले, दैट इज द टोटल यूटिलिटी, ओके। तो टोटल यूटिलिटी इज द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी derived by consuming all the units of a commodity, okay. Sum total of utility derived by the consumption of all the units, okay. एक कमोडिटी की एक से ज़्यादा यूनिट जब कंज्यूम की गई है तो वहाँ पे टोटल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट यूज होएगा, क्योंकि हम एक से ज़्यादा यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो हर एक यूनिट जो है हमें कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन को प्रोवाइड कर रहा होगा। तो उनको हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? टोटल यूटिलिटी, ओके। नेक्स्ट वन इज मार्जिनल यूटिलिटी, ओके। मार्जिनल कॉन्सेप्ट मार्जिन है, दैट मीन्स डिफरेंस है, ओके। सो जब हम एक से ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करते हैं तब हमारे पास मार्जिन आता है, ओके। सो टोटल यूटिलिटी में जो एडिशन हुआ बाय कंज्यूमिंग an extra unit of a commodity, okay. So the addition made to total utility, okay. The addition made to total utility, okay, when an extra unit is consumed, okay. So additional utility or addition utility, clear? Additional utility or addition utility, sorry, addition utility made to total utility, total utility में जो addition हुआ है utility का, कब? when an extra unit is consumed, उस यूनिट, उस कमोडिटी की एक एडिशनल या फिर एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पे जो टोटल यूटिलिटी में जो एडिशन हुआ है, दैट एडिशन इज मार्जिनल यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल 2 यूनिट्स कंज्यूम करने के बाद थर्ड यूनिट जब हम कंज्यूम करेंगे तो एडिशनल यूनिट कौन सी होगी? थर्ड। तो उसने भी कुछ ना कुछ यूटिल्स तो हमें दिए होंगे, कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन, वो भी हम ऐड करेंगे पहले 2 यूनिट्स में। तो 2 यूनिट्स ने टोटल मिलके 20 यूटिल्स दिए, तीसरी यूनिट ने हमें क्या दिया? 7 यूटिल्स दिए, तो 27 टोटल हो गया। तो थर्ड ने कितना दिया? 7 यूटिल्स, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी की थर्ड कंज्यूम करी तभी हमें 7 यूटिल्स एक्स्ट्रा मिले, ओके। तो हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो गई, ओके। So addition made to total utility or additional utility when an extra unit is consumed is called marginal utility, clear? Marginal utility का फॉर्मूला है MUN is equals to TUN minus TUN minus 1, okay? जो हम पहले से डिस्कस करते हैं। marginal utility at nth unit is equals to total utility at nth unit, मतलब marginal utility निकालनी है 6th यूनिट की, तो total utility 6th यूनिट की हम लिखेंगे और 6 - 1 टोटल यूटिलिटी ऑफ 5th यूनिट लिखेंगे। 6th और 5th यूनिट का जो डिफरेंस होगा
टोटल यूटिलिटी में, वो हमारा 6 यूनिट की क्या आ जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, फॉर एग्जांपल हम टेबल से देखते हैं, दिस इज द टेबुलर प्रेजेंटेशन, दीज आर द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी विच आर बीइंग कंज्यूम्ड, ठीक है, जिनको हमने कंज्यूम किया है, ये नंबर ऑफ यूनिट्स है, 5 टोटल यूनिट, एक कमोडिटी एक है। फॉर एग्जांपल चपाती इज अ कमोडिटी, हमने 3 चपाती कंज्यूम करी, तो 3 यूनिट्स ऑफ चपाती, ओके, चपाती इज अ कमोडिटी, 3 यूनिट्स ऑफ चपाती। ओके, सो एक कमोडिटी की 5 यूनिट्स हमने यहाँ पे कंज्यूम करी हैं, ठीक है। सो उनसे हमें अलग अलग यूटिल्स मिले हैं। फर्स्ट यूनिट जो हमने कंज्यूम की, उससे हमें 100 यूटिल्स मिले, ओके, 100 यूटिल्स मिले। सेकंड यूनिट, ओके, दिस इज 2 यूनिट्स, नॉट सेकंड यूनिट, दीज आर 2 यूनिट्स। ओके, 2 यूनिट्स कंज्यूम करने पे टोटल यूटिलिटी कितना होगी, फर्स्ट और सेकंड की 190। 3 यूनिट्स कंज्यूम करने पे टोटल यूटिलिटी, ओके, थर्ड की नहीं है, टोटल है तीनों की। ओके, तो 3 यूनिट्स जब हमने कंज्यूम करी तो टोटल यूटिलिटी 270 हो गई। ओके, तो अगर हमें थर्ड यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है, तो थर्ड यूनिट की टोटल यूटिलिटी में से सेकेंड यूनिट की टोटल यूटिलिटी हम माइनस कर देंगे, दैट मीन्स 270 माइनस 190 हमारे पास आ जाएगा 80। तो थर्ड यूनिट ने कितना ऐड किया, जब हमने थर्ड यूनिट कंज्यूम करी तो हमें टोटल यूटिलिटी में 80 यूटिल्स ऐड हुए। थर्ड यूनिट ने कितने दिए यूटिल्स, कितना सेटिस्फेक्शन दिया, 80 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन दिया। ओके ओके, सो टी यू कैसे कैलकुलेट होगा, टी यू इज इक्वल टू समेशन एम यू, मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, क्योंकि हर यूनिट पे जो टोटल यूटिलिटी का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस मार्जिनल यूटिलिटी है, तो उस डिफरेंस को हम ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास क्या आता जाएगा, टोटल यूटिलिटी। ओके, मतलब हर एक एक्स्ट्रा कमोडिटी हमें कितना यूटिल्स दे रही है, उसको हम ऐड कर लेंगे तो टोटल यूटिलिटी मिल जाएगा उतनी यूनिट का जो हमने कंज्यूम करी है। यहाँ पे 5 यूनिट कंज्यूम करी है, तो हर एक यूनिट कितना यूटिल दे रही है, 100 फर्स्ट ने दिया, सेकंड ने, यहाँ पे 2 का नहीं है, सेकंड का है, फर्स्ट का 100, सेकंड का 90, थर्ड का 80, फोर्थ का 70 एंड फिफ्थ का 60, दैट मीन्स इन यूनिट्स ने इतने अलग अलग यूटिल्स दिए हैं, ठीक है, या फिर इनसे हमें इतनी सेटिस्फेक्शन मिली है, इतने यूटिल्स। ओके, इन सबको ऐड कर देंगे तो टोटल 5 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन आ जाएगा। ओके, सो टी यू इज इक्वल टू समेशन एन यू, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं मार्जिनल वाले कॉन्सेप्ट में, चाहे रेवेन्यू हो चाहे कॉस्ट हो, मार्जिनल कॉन्सेप्ट ऐसे ही लगेगा। तो हमने देखा कि टोटल यूटिलिटी जो है वो तो इंक्रीज होती जाती है जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करें, ठीक है, 5 यूनिट्स हमने कंज्यूम करी, टोटल यूटिलिटी हमारी इंक्रीज होती गई। ओके, फर्स्ट यूनिट पे 100 थी, सेकंड की 2 यूनिट्स पे, नॉट सेकंड, 2 यूनिट्स पे 190 हो गई, क्योंकि सेकंड ने 90 ऐड किए, तो फर्स्ट और सेकंड 190। थर्ड जब 3 यूनिट कंज्यूम करी तो 190 और 80 270 हो गया, देन 340 हो गया फोर्थ यूनिट कंज्यूम करने पे, टोटल 4 यूनिट्स की टोटल यूटिलिटी, क्योंकि टोटल यूटिलिटी क्या है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम करने पे जो आया, ठीक है, तो टोटल कितनी यूनिट कंज्यूम की, 4, तो चारों का ऐड कर देंगे तो 4 यूनिट कंज्यूम करने पे कितना हो गया, 340, 5 यूनिट कंज्यूम करने पे 5वें का भी ऐड कर दो, दैट इज 400, दैट मेक्स टू 400। ओके, तो हमने देखा कि जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज होती जा रही है, हालांकि वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी हर यूनिट की, हर एक सक्सेसिव यूनिट की, ओके, every success marginal utility of every successive unit gets decreases। ओके, हर एक एक्स्ट्रा यूनिट जो है हमें पहले के मुकाबले, यू कैन से हर एक एक्स्ट्रा यूनिट जो है हमें पहले के मुकाबले कम सेटिस्फेक्शन देगी। एक सिंपल सा लॉजिक लगता है, जब हम खाना खा रहे हैं तो पहली चपाती ने हमें जो सेटिस्फेक्शन लेवल दिया वो लास्ट चपाती से बहुत हाई होगा, क्योंकि एक पॉइंट आएगा ना जब हमारा पेट भर चुका होगा, अब हमें और रोटी खाने की इच्छा नहीं है, इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर नहीं है, ठीक है, इच्छा नहीं है हमें, ठीक है, तो दैट मीन्स जो लास्ट चपाती हमने खाया या लास्ट यूनिट हमने कंज्यूम किया, उसकी हमारी यूटिलिटी या उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन बहुत कम था, क्योंकि पहली वाली रोटी ने हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दिया, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी हमें लगी, लास्ट वाली ने ज़बरदस्ती हमने खाया फॉर एग्जांपल, तो हमें बहुत कम सेटिस्फेक्शन मिला। ओके, ज़बरदस्ती खाया, पेट में भी दर्द हो सकता है, वॉमिटिंग भी हो सकती है, ठीक है, तो यूटिलिटी नेगेटिव भी हो सकती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो टोटल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है, ये टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है, मार्जिनल डिक्रीज होती है। मार्जिनल डिक्रीज होने का मतलब है हर एक सक्सेसिव यूनिट जो है कम यूटिल्स ऐड करती है, हर एक एक्स्ट्रा चपाती जो हम खा रहे हैं, ठीक है, वो हमें कम से कम सेटिस्फेक्शन देगी, सबसे पहले वाली ने सबसे ज़्यादा दिया, दूसरी वाली ने उससे कम दिया, तीसरी ने उससे कम दिया। ओके, तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन गेट्स डिक्रीज
विद एवरी सक्सेसिव यूनिट। ओके, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पर यूनिट डिक्रीज होता जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाती है, बट टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगी एक सर्टेन पॉइंट तक। ओके, टोटल यूटिलिटी एक सर्टेन पॉइंट तक डिक्रीज होगी, सॉरी इंक्रीज होगी, ठीक है, सर्टेन पॉइंट तक। टोटल यूटिलिटी डिक्रीज भी होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो टोटल यूटिलिटी हमने देखा इंक्रीज होती है, हालांकि डिक्रीजिंग रेट से, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजिंग है। तो रिलेशनशिप देखें कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज, ओके, डिक्रीजिंग रेट से। क्लियर? तो जब तक मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है और पॉजिटिव है तब तक टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगी, जब तक MU पॉजिटिव है तब तक PU इंक्रीज ही होगी। ओके, नाउ रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। हमने देखा कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है, लेकिन टोटल यूटिलिटी तब तक ही इंक्रीज होगी जब तक कि मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होती है। ओके, सो इन द टेबल टिल फोर्थ यूनिट, ओके, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, ठीक है। फर्स्ट यूनिट ने कितने यूटिल्स दिए? ए, सेकेंड यूनिट ने उससे कम दिए 6, थर्ड यूनिट ने उससे कम दिए, फोर्थ यूनिट ने उससे कम यूटिल्स हमें या सेटिस्फेक्शन हमें दी, ठीक है। तो फोर्थ यूनिट तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, फिफ्थ यूनिट पे जीरो है, न्यूट्रल हो गई, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ठीक है। फोर्थ यूनिट तक पॉजिटिव है। तो जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहती है तब तक टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगी, फोर्थ यूनिट तक इंक्रीज होती है, ठीक है, फोर्थ यूनिट तक। ओके, जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हो जाएगी मैक्सिमम पे जाके। ओके, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव टोटल यूटिलिटी स्टार्ट डिक्लाइनिंग। जब मार्जिनल यूटिलिटी बाय नेगेटिव चली जाती है तो टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होने लग जाती है। फॉर एग्जांपल, एक्स्ट्रा चपाती खाने से वॉमिटिंग हो गई, तो जो पहले खाया था वो भी तो साफ खाएगा, ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ जो एक्स्ट्रा चपाती खाया वही उल्टी आएगा, ओके, वॉमिट में आएगा। ओके, तो मे बी पिछले वाला खाया पिया भी आपका बाहर आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मतलब आपकी यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन कम हो गई, ठीक है, एक्स्ट्रा चपाती खाने से ज़्यादा तो नहीं मिली, कम और हो गई, उल्टा जो पहले खाया था वो और बाहर आ गया, ठीक है, दैट इज नेगेटिव यूटिलिटी। तो इस वजह से टोटल यूटिलिटी कम हो जाएगी। तो हमने क्या रिलेशन देखा कि एज एंड व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी रिमेन और टिल दैट टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज, तब तक जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहती है। जब वो जीरो हो जाएगी तो ये कांस्टेंट मैक्सिमम, एंड जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है तो टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होने लग जाएगी। ओके, दिस इज द ग्राफिक प्रेजेंटेशन। ग्राफिकली अगर हम देखें तो मार्जिनल यूटिलिटी का स्ट्रेट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है और नेगेटिव भी होता है। एंड PU कर्व, टोटल यूटिलिटी कर्व, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ठीक है, इंक्रीज होगा, देन कांस्टेंट एंड देन बिकम डिक्रीजिंग। ओके, ये हमने देखा कि कब कब होगा, मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मार्जिनल यूटिलिटी जब तक पॉजिटिव रहती है, सॉरी हाँ पॉजिटिव रहती है तब तक टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगा, जैसे ही नेगेटिव हो जाएगी टोटल यूटिलिटी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ओके, ये रिलेशनशिप था हमारा। नेक्स्ट आता है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मीन्स डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है व्हेन एवरी सक्सेसिव यूनिट इज कंज्यूम्ड। जब हर एक एक्स्ट्रा या एडिशनल यूनिट हम कंज्यूम करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाती है। ओके, सो सिंपल सी बात है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी यही कहेगा, मार्जिनल यूटिलिटी टेंड्स टू डिक्लाइन एज द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेज। जैसे जैसे हम कमोडिटी का कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है, ठीक है। हर एडिशनल यूनिट हमें पहले के मुकाबले कम सेटिस्फेक्शन देगी, ठीक है। इस लॉ को हम कहते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन, क्योंकि हम तभी सेटिस्फाई होंगे जब हमें एक्स्ट्रा यूनिट या एडिशनल यूनिट कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं देगी, तब हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन या सेटिस्फाइड या सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे होंगे। क्योंकि जब अगर सेटिस्फेक्शन हर एक्स्ट्रा यूनिट इंक्रीजिंग ऑर्डर में देगी तो हम कभी सेटिस्फाई होंगे ही नहीं, क्योंकि हर एक एक्स्ट्रा यूनिट ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रही है, तो कभी एंड पॉइंट पे पहुंचेंगे नहीं, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन और फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ, ठीक है। हम तभी पूर्णतः तृप्त लाइक
कंप्लीटली सेटिस्फाइड फील करेंगे जब एक्स्ट्रा यूनिट हमें सेटिस्फेक्शन देना बंद कर देगी। ओके, दैट्स व्हाई इट इज फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन। अभी कुछ अजम्पशन लॉ है तो भाई अजम्पशन होगी, ठीक है, तो कुछ अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट अजम्पशन कहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है अजम्पशन, लॉ तभी अप्लाई होगा जब अजम्पशन है, ओनली स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड। जब हम एक कमोडिटी की स्टैंडर्ड यूनिट कंज्यूम कर रहे होंगे तभी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होगी विद एवरी सक्सेसिव यूनिट। ओके, लाइक अगर हम चाय पी रहे हैं तो चाय के लिए हमारा स्टैंडर्ड जो यूनिट है वो क्या है, ए कप ऑफ टी। ऐसा नहीं है स्पून फुल ऑफ टी, हम चम्मच से चाय पियेंगे तो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल पहली चम्मच के मुकाबले दूसरी चम्मच का कम हो जाएगा। या फिर हम कहें ग्लास ऑफ वाटर, ए ग्लास ऑफ मिल्क, ठीक है, सिप हम नहीं कहेंगे, सिप ऑफ वाटर, ठीक है, एक घूंट पानी हमने पिया, दूसरी घूंट हमने पानी पिया, लाइक दैट। ओके, तो एक स्टैंडर्ड कमोडिटी क्लियर। इसी तरीके से 1 चपाती 2 चपाती, ओके, इस तरीके से हम कंज्यूम करेंगे। 1 एप्पल 2 एप्पल, ठीक है, ऐसा नहीं है 1 बाइट ऑफ एप्पल 2 बाइट्स ऑफ एप्पल। ओके, तो एक स्टैंडर्ड यूनिट हम कमोडिटी कंज्यूम करेंगे तभी ये लॉ अप्लाई होगा। Consumption of the commodity should be continuous. That means consumption should be continuous. Okay. कंजम्पशन कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, सेम पॉइंट ऑफ सेम टाइम पे आप कंज्यूम कर रहे हैं लगातार। ऐसा नहीं है एक रोटी सुबह खाई, दूसरी रोटी आप दोपहर को खा रहे हैं या दूसरे टाइम पीरियड पे खा रहे हैं, ठीक है, तो उस दूसरी रोटी ने पहले के मुकाबले ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दी तो आप कहेंगे कि लो तो फेल हो गया। नहीं, कंजम्पशन कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, ठीक है। एक टाइम पे खा रहे हैं 2 या 3 या 4 चपाती आपने खाई हैं, उनका कंपेयर करेंगे कि फर्स्ट चपाती ने कितना सेटिस्फेक्शन दिया, दूसरी उससे कम देगी, तीसरी उससे कम देगी। ओके, तो कंजम्पशन शुड बी कॉन्टीन्यूस, गैप नहीं होना चाहिए उनमें, टाइम गैप नहीं होना चाहिए। ओके, सो दीज आर द अजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी।